जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की आज्ञा से आज हम आगे बढ़ते हैं और आज की जो सेशन है आज का गुरु जी की कृपा से वो हम शुरू करते हैं। हमने कल पढ़ा था कि विद्या जी ने बताया था कि हर विजिट्स टू मेहराबाद were like home coming for her, as nothing could excite her more than this. And then we read about her visit to the site of the accident, and she could remember how her body was lying on the road. But yes, she didn't feel sad over her death. So sadness kaun si unko feel hui? She did not feel sad over her death, but yeah, she did feel sad due to the moment of separation. And then फिर हमने पढ़ा she visited Grafton and Rosewood, Bangalore at Satara, where Baba and his Mandali stayed. And just before the accident in 1956, she, remembers that how they all used to wash outside Rosewood. And she also recalled how her, late evening chats, which happened with her Mandali members and many other things she remembered. And we read how Baba, encouraged him to write poetry, and Baba used to enjoy the essence behind the poetry. Then we read that Nilu had special relationship with Gustachi, and he remained. He also, just like Baba, he didn't utter anything. जो उनका भी वो मौन था, वो 30 सालों तक रहा उनका भी. वो हमने पढ़ा that उस तरह से वो भी 30 सालों तक नहीं बोले थे. फिर हमने आगे जाके पढ़ा कि विद्या जी कहती हैं कि वे जैसे ही बाबा की चेयर पर पहुंचती हैं, माथा टेकती हैं, she's able to feel his presence and his hand on her head. और बस उनको क्या पेन, कौन सी पेन she goes through is just that the physical separation from Baba. She pines for that, she longs for that, and she's in deep pain, when she thinks about that. तो बाबा फिर उनको कैसे बोलते हैं, बाबा कहते हैं, do not lose heart and stay courageous. वो क्या बाबा कहते हैं, I'm always with you, and we are, who says we are separate from each other? We are not at all separate from each other. We are one. मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं कभी छोड़ता हूँ. And जब भी वो कार में बैठती हैं, उनको लगता है बाबा उनके साथ हैं. And then we read को किस तरह से वो बातें करती हैं बाबा के साथ, और सारे मील्स उन्हीं के साथ खाती हैं. उन्हें हमेशा अपने पास महसूस करती हैं. और जब कभी वो गुस्से में भी आ जाते हैं तो बाबा यही कहते हैं, see how you have harmed yourself because by being angry you have caused pain to me. Then we read about the reality of work. तो हमने सारा वो जो कल पढ़ा था काम के ऊपर होता है, काम के ऊपर हमने पढ़ा था reality of work. हमने पढ़ा कि किस तरह की frustrations होती हैं काम को लेके, प्रोफेशन को लेके. वो किसी तरह का भी काम हो सकता है, whether you're in a job or a profession. And especially when you consider yourself misfit, and then you go through all those frustrations, or is tarah se sometimes you are shuttling from one job to another. When you don't get satisfied, you change your job, and at the end of that still you're not satisfied. पर हमें उसमें ये भी नहीं पता लगता कि कौन सी एग्जैक्टली जॉब हमारे लिए बनी है, हम उसमें क्यों खुश नहीं है. कई बार पैसे कमाने के लिए आपको जबरदस्ती करनी पड़ती है, या कई बार आप अपने पैशन को भी नहीं फॉलो करते हैं क्योंकि लाइफ में और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, और वो जो इनर अलाइनमेंट होती है ना, वो मिसिंग हो जाती है लाइफ से. सो लाइफ बिकम्स रियली डल एंड ड्रेरी. तो ये सारा वर्क को लेके हमने कल पढ़ा था कि किस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है जॉब हॉपिंग को लेके, जो कि बहुत फ्रस्ट्रेट कर देता है, या कोई बिजनेस को लेके इसी तरह से वो फिर पूरी लाइफ टाइम में इंसान को इतनी डिससैटिस्फैक्शन आती है. सो बट लकी आर दोज who have got the job of their choice, they desire, so they are really fortunate to have that. On the other hand, when you have capability or potential to do something meaningful and you just पर क्या को आप में अगर काबिलियत है तो कुछ करने की, पर आप again you're whiling away your time by just lazing around, तो फिर ये भी आपका एक अनहैप्पीनेस का कारण बन जाता है, और फिर बाद में आपकी सेहत को भी ये बहुत बहुत नुकसान पहुंचाता है. यहीं तक हमने छोड़ा था. उसके बाद
हम ये दोबारा से पढ़ लेते हैं. However, when there is a potential to do something meaningful, but time is idled away due to some excuse or the other, or out of sheer laziness, then the resulting deep sense of unhappiness can even affect one's health. वो तो है ही है. फिर उसका रिजल्ट यही है, आपकी सेहत खराब होगी, आपका मेंटल पीस खराब होगा. Gossip and backbiting further add fuel to the fire and increase the level of unhappiness as deep down everyone knows one's own truth. वो तो है ही है. उसके बाद फिर आप ऐसी चीजों में इंडल्ज करते हैं, बैक बाइटिंग में, गॉसिपिंग में, तो वो फिर और उसको बढ़ाने का काम करता है. और फिर अगेन ये चीजों से खुशी तो मिलने नहीं वाली, पर अंदर से सबको अपना पता होता है, कौन कहाँ पर कैसा कर रहा है, क्या है, वे यू स्टैंड, अंदर सब पता है सबको. तो अपनी जो भी अंदर से इंसान कैसा है, अपनी वास्तविकता का सबको ज्ञान होता ही है. सो आगे हम पढ़ते हैं. Why is it important to identify and do the right work in life? कहते हैं, क्यों जरूरत है कि आप पहचाने, सही काम को पहचाने, और इसका आपको ये जो चुनाव करना है ये क्यों बेहतर होता है. कहते हैं, at some point everyone wonders what they are made for, what their real purpose is, what their life is meant for. In the first place, identifying the right work in itself is difficult, and then turning it into reality is even more so. When it becomes difficult to find an answer, we usually keep it aside for some time and carry on with life till it hits us from another direction. कहते क्या होता है ना, इंसान कभी ना कभी तो वह सोचता ही है कि कौन से काम के लिए बना है, उसके काम की ये जो है रियल पर्पस है क्या, उसके जीवन का भी उद्देश्य क्या है, तो क्या है, किसके पीछे वो भागा चला जा रहा है, तो असली है क्या चीज. तो सबसे पहले तो यही बड़ा मुश्किल हो जाता है भी, अच्छा कौन सा काम करें. उसके जब आपको वो हासिल नहीं भी होता तब भी आपको फिर उसमें मुश्किलात आती हैं, और फिर जब हमें वो आंसर नहीं मिल पाते हैं तो फिर हम उसको इग्नोर कर देते हैं और अपने आप को किसी और कामों में इंडल्ज कर देते हैं. पर फिर भी we can't run away from the questions or the problems, you know, they just pop up, you know, they can pop up from anywhere. तो अब हम किसी चीज से जैसे भी अगर भागते भी तो कहीं ना कहीं से वो फिर दोबारा से आके खड़ी हो ही जाती है हमारे सामने. The truth is that everyone knows they are special and made for something more meaningful. It is important for each one to realize one's self-worth, as this is a prime motivator in life. कहते ये जो है ना, सच तो यही है ना, इंसान को तो ये हर इंसान को पता है कि वो स्पेशल है, और वो कोई ना कोई दे आर स्पेशल एंड मेड फॉर समथिंग मोर मीनिंगफुल. तो ये इससे परे है, उनकी जो सोच है वो क्या है कि वो किसी स्पेशल चीज के लिए बने हैं जो कि बहुत मीनिंगफुल है. जब आपको लाइफ में कभी ना कभी ये लगता है कि नहीं, यू नो, whatever I'm doing, I'm not meant for these things. I'm meant for something special. This is not my worth. I have to do something special which will add meaning to my life. कहते इसलिए it is important for each one to realize one's worth. तो अपने मूल्य को पहचानने की कोशिश करो, as this is a prime motivator in life. तो यही तो है जो आपके जीवन को सार्थक बनाएगा, आगे लेके जाएगा, as this is a prime motivator in life. In absence of this motivation, और जब ये motivation नहीं होती है, उसकी absence में आपकी life meaningless हो जाती है. Life feels empty and meaningless. So self-worth is experienced when we are value to someone's life in a smaller or big way. कहते आपकी जो असली कीमत का पता चलता है जब आप औरों की जिंदगियों में रंग लाते हैं, चाहे वो छोटे तरीके से या बड़े तरीके से. when you know, जब आप अपना योगदान देते हैं किसी और की जिंदगी में, it comes in different forms. ये जो मदद है ना, वो किसी भी तरह के तरीकों से आ सकती है, किसी भी फॉर्म्स में आ सकती है. Some people derive happiness from helping the differently abled cross a road. Some derive happiness from providing employment opportunities or helping friends solve their problems. तो कईयों को किस तरह से खुशी मिलती है, आप किसी को सड़क पार करा दें जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, या आप किसी को कोई नौकरी दिलवा दें, या किसी भी तरह से उनकी मदद कर दें, और किसी तरह की कोई आप अपॉर्चुनिटीज उनको ऐसी ला के दे दें, अपने फ्रेंड्स की चाहे मदद कर दें, तो ये ऐसे अवसर आपको कहीं ना कहीं से जाने में उस तरह की खुशी दे देते हैं. Okay, some people derive happiness from helping the different able cross a road. Some derive
happiness from providing employment opportunities or helping friends solve their problems and so on. Every such incident unknowingly brings pleasure and encourages a person to do more. तो इस तरह से काम करने से आपको क्या होता है, खुशी मिलती है और आपको अंदर से encouragement भी मिलती है कि नहीं मुझे इस तरह के और कार्य करने हैं, आपको एक तरह से प्रोत्साहन मिल जाता है. If this is true for you, then imagine what it would be like when you identify and do your real work in this world. कहते ठीक है, अगर आपको लगता है ना कि हाँ भाई ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल लागू होती है, तो ये सोचो कि वही काम जो असली काम जिसके लिए आप बने हो ना, अगर उसको आप करो तो उसका नतीजा क्या होगा. What is the purpose of your existence? जो असली चीज, it will bring you immeasurable happiness and satisfaction. कहते आप सोच भी नहीं सकते इतनी आपको खुशी मिलेगी कि आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हो और उस तरह की satisfaction आपको मिलेगी. In this manner, while everyone is living their lives or improving oneself, they are knowingly or unknowingly also serving someone else. कहते इस तरह से जब आप अपनी जिंदगी जी रहे हो ना और उस तरह से अपने आप को सुधारते सुधारते आप इनडायरेक्टली किसी और की भी सेवा कर रहे होते हैं, किसी और की भी मदद कर रहे होते हैं. जब इंसान अपनी लाइफ में सुधार ले आता है ना, तो वो किसी और जाने अनजाने में उसको चाहे ना भी पता हो, वो उसकी जो ये सुधार है दूसरों की लाइफ में भी वो इम्पैक्ट लेके आता है. Kindness, service and love are a two-way street. ये दोहरी मार्ग का काम करते हैं. Kindness, service and love, and you receive because you give. ये तो है ही है. जितना आप इन चीजों को देंगे उतना ही आप पाएंगे. जो आपने दिया होता है वो ही आपको वापस मिलता है, क्योंकि ये what goes around and comes around. True service, as Baba always said, is difficult to achieve. बाबा कहते हैं पर जो सच्ची भावना है ना, सच्ची सेवा की जो भावना होती है वो आसान नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है. There is always a selfish intent behind every service. कहते नॉर्मली क्या देखा जाता है, दुनिया में भी हम देखते हैं कोई ना कोई कार्य के पीछे, सेवा के पीछे इंसान का अपना कोई selfish intent जरूर होता है, which could be earning your name, fame and recognition, power or even your own happiness. तो वो क्या होता है सेल्फिश पर्पस, चाहे आपको प्रसिद्धि मिले, लोग आपके बारे में जाने, आपको पहचान मिले और यहाँ तक कि आप अपनी खुशी के लिए भी कई बार करते हैं. Service performed for the sake of actual service that fulfills in its true essence a really need is hardly ever seen. तो इस तरह सेवा का जो सच्चा अर्थ होता है ना, वो दुर्लभ ही आजकल मिलना, जो उसका रियल एसेंस से जो लोग करते हैं. Those who are truly serving wouldn't think for a moment that they are serving, that is real service. कहते जो इंसान सच्ची सेवा करता है ना, उसके मन में कभी भी ये विचार नहीं आता कि वो सेवा कर रहा है. तो ना तो वो दिखावे के लिए करता है, ना तो वो कोई सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए करता है, वो ये भी नहीं सोचता कि मेरे हाथों सेवा हो रही है. So that's a real service, ऐसा बाबा कहते हैं. If one finds happiness in one is doing, one may find a deeper meaning in it. कहते अगर व्यक्ति को किसी काम से खुशी मिलती है ना, और उस काम से वो जीवन का अर्थ उसको अगर वो चाहे ना तो उसका डीप मीनिंग भी पता लगने लग जाता है. On the other hand, if one wants to change one's life or work, is lucky enough and gets to decide the work one wants to do, there still may be many things that could cause confusion. कहते अगर दूसरी तरफ से हम ये देखें, एक तो हमने पढ़ा one finds happiness in what one is doing. अगर तो जो बंदा जो काम कर रहा है उसमें उसको खुशी मिलती है और अगर वो चाहे तो उसको असली अपना मतलब भी उसको उसमें मिलने लग जाता है. पर अगर दूसरी तरफ से हम देखें, अगर इंसान अपना काम बदलना चाहता है और लकी भी हो जाता है, फॉर्चुनेट इनफ, उसको जिस तरह का वो काम चाहे वो मिल भी जाए, पर कहते फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी जिंदगी में खड़ी हो जाती हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं. द चैलेंज इज टू गेट आउट of the job one is doing and risking one's very identity, present status, and comforts. There are two major aspects to consider: arrive at the decision to stop doing whatever one is doing, and then to know exactly what one wants to do. तो क्या डिसीजन फेस करते हैं? या तो आप मत करो जो चाहते हो करना, या फिर आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए जिंदगी में कि आगे आपको कौन सा काम करना है. तो ये इट वाज ऑल रिलेटेड टू वर्क. जिस तरह की मुश्किलात आती हैं जिंदगी में, कई बारी जाने अनजाने में भी हमें बहुत ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं, बट कई बारी आपको उस तरह के आपको बिकॉज वो
लाइफ में बहुत सी चीजें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी करते हैं या बेमन होके भी करते हैं, बट ये सर्वाइवल के लिए बहुत कुछ जिंदगी में करना पड़ता है। आगे है क्लैरिटी ऑफ एक्शन। कहते क्लैरिटी कम फर्स्ट, सबसे पहले तो वो क्लैरिटी आती है। दिस इज व्हाट हैपेंड टू मी इन माय सर्च फॉर द राइट वर्क इन दिस वर्ल्ड। आई हैड सेवरल डिस्कशंस विद बाबा। कहते क्या था कि जो मैं जिस तरह का काम करना चाहती थी ना, जो मेरे अनुकूल हो, तो इसके बारे में मैंने बाबा से काफी बातें की, डिस्कशंस की। एंड ही मेड मी रियलाइज द कोर ऑफ माय सर्च। तो उन्होंने बता भी दिया भी हाँ एक्चुअली तुम्हें क्या चाहिए और किस तरह का काम करना चाहिए। Initially, I made the mistake of holding on to some desires, and even now illusion takes over at times, and I find myself pursuing meaningless things. कहते कभी कभी ऐसे होता था ना, मैं भी आफ्टर ऑल वो भी तो इंसान है। कहते मैं भी इच्छाओं के पीछे भागती थी, और कभी कभी कुछ इल्यूजन के जाल में फंस के ना, तो मैं भी ऐसे बहुत बारी हुआ है कि मैंने मीनिंगलेस चीजों के पीछे मैं भी भागी हूँ। बाय हिज ग्रेस आई सी द राइट पाथ एवरी टाइम एंड रिटर्न टू इट। कहते बट यस, उनकी मेहर ऐसी थी, अगर मैं कहीं ऐसी चीजों में फंस भी जाती थी, पर मुझे एक सही रास्ता पता लगने लग गया, और फिर मैं वापस अपनी सही दिशा पर ही आ जाती थी। She would never get lost if she would indulge in some wrongdoing, or probably if she would just get stuck in some illusionary thing. So but with Baba's meher, Baba's hand, she would every time, even if she would follow some other path, she would just come back from where she started, and that path, basically it's of Baba, the real path. When I look back, even those meaningless things have some significance and have facilitated my growth. ये तो है ही है, जब पीछे आप जर्नी पे देखते हैं कई ऐसी चीजें जिनका कोई भाव नहीं है, मीनिंगलेस है, पर कहीं ना कहीं वो एक आपको पुश देता है आगे बढ़ने के लिए, और वो आपका ये जो रास्ता है उसको और भी आसान कर देता है। तो ये तो है ही है, जिन चीजों को कई बार आप सोचते हैं हमारी जिंदगी के लिए महत्व नहीं थी, पर उन्हीं के कारण आपका वो जो ग्रोथ होती है ना, विकास होता है। तो हर चीज का कोई ना कोई कारण तो रहता ही है। Now I know that Baba places me wherever he wants me to be, and my only job is to be at ease with whatever I am made to do. कहते अब मुझे वो समझ आ गया है कि जो बाबा चाहते हैं ना, वो मुझे वहां पहुंचा ही देते हैं, और जो मेरे से वो करवाना चाहते हैं वो करवा लेते हैं। सो ना आई नो दैट बाबा प्लेसेस मी वेयर एवर ही वांट्स मी टू बी। वो मुझे वहां भेज देते हैं, ऐसी ऐसी वो चीजें करवा देते हैं मेरे हाथों जहां मुझे होना चाहिए। एंड माई ओनली जॉब इज टू बी एट ईज। तो मुझे कुछ ज्यादा अपना दिमाग तो लगाना नहीं है, और जो भी उन्होंने करवाना है मुझसे करवा ही लेना है। दिस गिव्स मी ट्रेमेंडस फ्रीडम एंड रिलीजेस मी फ्रॉम द प्रेशर ऑफ कॉन्स्टेंटली चेजिंग समथिंग इन दिस वर्ल्ड। ऑफ कोर्स अब जो बाबा सही दिशा दिखा रहे हैं उससे इनको बहुत एक स्वतंत्रता का अनुभव होता है। और वो कहती हैं कि पर ये भी है कि मुझे इस तरह ऐसा नहीं है कि वो जो अच्छा ही है ना, तो इसके इसके इस चीज के कारण से जो प्रेशर होता है उस चीजों से मैं बाहर निकल जाती हूँ। ये जो दुनिया की चीजें, मुझे भागने की कहीं जरूरत ही नहीं है। पर कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है, दैट डज नॉट मीन आई कैन बी रिस्पॉन्सिबल डू नथिंग। इट ओनली मीन्स आई डोंट पुश माई एजेंडा एनी मोर। कहते पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं ऐसे चुपचाप बैठ जाऊं और मतलब मैं इररिस्पॉन्सिबल हो जाऊं और अपनी चीजें अपनी क्षमता के मुताबिक ना करूं और अपनी चीजें किसी पे फोर्स करूं। इट ओनली मीन्स आई डोंट पुश माई एजेंडा एनीमोर। अब ये है कि मैं अपनी ओपिनियंस, अपनी जो भी वैल्यूज हैं, जो भी चीजें हैं, मैं अब थोपती नहीं। I don't pressurize or I don't push my agenda anymore. I just go with the flow, the way he's making me flow. तो यही है बाबा कि हाजिर नाजिर में जो भी बाबा उनसे करवाते हैं वो वैसा ही करती हैं। उनको अपना दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने लिखा दिस गिव्स मी ट्रेमेंडस फ्रीडम एंड रिलीजेस मी फ्रॉम द प्रेशर ऑफ द कॉन्स्टेंटली चेजिंग समथिंग इन द वर्ल्ड। तो उनको इस क्रिया के दबाव से भी उनको मुक्ति मिली है। ऐसा नहीं कि उनको ऐसा बर्डन उनको लेना पड़ा, बिकॉज बाबा इज गाइडिंग हर थ्रू एंड थ्रू। आगे है द ईगो इज एट प्ले व्हेन देयर आर गोल्स एंड दे आर अचीव्ड। ये तो है ही है, ईगो कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर ही लेती है जहां पर गोल्स की बात आती है, जहां पर आपने कुछ लक्ष्य पाने होते हैं, कुछ स्पेशल चीजें करनी होती हैं। ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग सो। तो ठीक है, इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। Those who are in spiritual pursuit and trying to overcome the limitation of responding from the limited ego or the false I can easily drift from the core purpose if they keep chasing material goals. कहते वो भी लोग जो स्पिरिचुअलिज्म में है या स्पिरिचुअल पर्सन जिनका वो मिशन है उसके पीछे वो लगे हुए हैं, अगर ठीक है, पर अगर वो भी अपने रास्ते से भटक जाए ना, तो फिर वो भी ड्रिफ्ट हो सकते हैं। तो ये इसमें लिखा है, कहते हैं
कि जो व्यक्ति है स्पिरिचुअल प्रगति अपनी कर रहा है, पर वो अपने वही झूठा अहम और उससे अगर हटना चाहे ना, तो अगर वो भी अगर दुनियावी चीजों के पीछे भागने लगे तो वो भी भटक सकता है, ही कैन ऑल्सो गो एस्ट्रे। सो इसीलिए जरूरी हो जाता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द स्पिरिचुअल गोल इज अचीव थ्रू मटेरियल एक्सपीरियंसेस। कहते ठीक है, ये संभवता है कि स्पिरिचुअल गोल अचीव आपको हो सकता है मटेरियल एक्सपीरियंसेस से भी, पर आप इनको एक जरिया समझें, एक एंड नहीं। उसको एक 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 वो ब्रिज का काम करता है जोड़ने का, पर सिर्फ वो ही सब कुछ नहीं है। तो इस चीज का कहते वो ध्यान देना जरूरी है कि ये जो दुनियावी एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, वो आपका स्पिरिचुअल उसमें गोल में आपकी हेल्प तो करेगा, पर वो सिर्फ एक साधन है। इसको आप पूरा वो नहीं समझ सकते हैं, एंड नहीं समझ सकते हैं। Likewise, it is important to differentiate between irresponsibility, laziness and surrender. कहते हैं इसी तरह से आप समझो कि क्या मतलब है इनका, हाउ टू डिफरेंशिएट इररिस्पॉन्सिबिलिटी, लेजीनेस और सरेंडर, इन दोनों में फर्क होता है। इन द नेम ऑफ सरेंडर, कहते हैं सरेंडर के नाम से ये नहीं है कि आप कुछ ना करें, कोई एक्शन ही ना करें, अपनी तरफ से कोई कर्म ही ना करें। इन द नेम ऑफ सरेंडर वन कैन गिव इट into inaction. Surrender comes out of faith and action comes from responsibility. कहते जो सरेंडर है, सरेंडर की भावना विश्वास की उपज है, वो विश्वास से होती है। और जो एक्शन है, जो कर्म है, वो जिम्मेदारियों से ही आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आता है। Action with the sense of surrender is a direct offering to the master, irrespective of the nature of the act. कहते ये सबसे बड़ी बात है, कार्य भी किया जाए, कर्म भी किया जाए और उसके साथ सरेंडर भी किया जाए, तो ये डायरेक्ट ऑफरिंग होती है अपने मास्टर को। Such a selfless act is true offering to him directly. तो ये जो selfless act का फिर काम करता है, यही आप एक सच्ची सौगात है जो ऑफर कर सकते हैं अपने मास्टर को, which frees one from the burden of the binding end results of the act. क्योंकि ये आपको उस बंधन से मुक्त कर देता है कि आपको ये नहीं होता है कि मुझे इसके बदले में क्या मिलना है, रिजल्ट क्या है। तो वही अपना कर्म अपने सच्चे भाव से करना चाहिए और विश्वास से, सरेंडर से, पर अपना बेस्ट देना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि आप लेजी हो जाएं, कोई कर्म ही ना करे, वो सरेंडर नहीं होता। कि नहीं जो करेंगे परमात्मा करेंगे, गुरु जी करेंगे और हमने कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें कर्म करना ही चाहिए, करना पड़ता भी है, और तब वो सोने पे सुहागा का काम करता है। कर्म करते करते आप अपने मास्टर को भी सरेंडर करें। From the point of absolute surrender, work becomes a means to reach the ultimate goal. जब absolute surrender होता है, फिर वो ही काम आपका जरिया ले आता है आपके ultimate goal को पहुंचाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए। Otherwise there is not much to brag about in terms of achievement in the world. कहते और क्या है, बाकी कुछ रह थोड़ी गया है कि आप अपनी उसको शेखी भिगारें या you have to blow your own trumpet, ऐसा कुछ भी नहीं है। It should not be forgotten that even people who have achieved great power and position have to leave everything behind. कहते हैं आप ये मत भूलो कि जो लोगों ने बहुत बहुत पावर भी अचीव की, उस तरह की पोजीशन भी अचीव की है, वो भी तो सब कुछ छोड़ के जाते हैं ना। एंड दे आर सेल्डम रिमेम्बर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो फिर यही होता, जो बंदा चले जाता है बहुत कम होता है, समय बीतने के साथ लोग उन्हें भुला भी देते हैं। तो यही है संसार की जो सफलताएं है ना, अगर आपको सक्सेस मिल भी जाती है, उसके ऊपर यू डोंट हैव टू बोस्ट अबाउट इट, बिकॉज ये हमें एट द सेम टाइम वी शुड नॉट फॉरगेट दिस थिंग कि चाहे कोई जितना मर्जी राजा हो, जिसके पास जितनी मर्जी सत्ता हो, शक्ति हो, कुछ भी हो, सबको यहीं पर छोड़कर जाना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, क्या गजब नजारा है इस संसार का, हर कोई सब कुछ बटोरने में लगा है खाली हाथ जाने के लिए। क्या गजब नजारा है संसार का, हर कोई सब कुछ बटोरने में लगा है खाली हाथ जाने के लिए। बात तो फिर वही है कि कोई भी चीज साथ में नहीं जानी है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है कि आपके पास जो कुछ है उसके बारे में आप ब्रैग करें। और क्योंकि विद टाइम जब बंदा चले जाता है तो लोग विद टाइम भूल ही जाते हैं। तो बहुत कम है तो होते हैं जो ऐसे अमर होके रह जाते हैं, जिनको लोग कभी भी नहीं भूलते हैं। One work during the time that we visit this planet should bring us and those around us happiness. कहते हैं one work during the time that we visit the planet, जिस मकसद के लिए हम आए हैं ना, जहाँ ये हमारा यही है कि हम खुशियां बांट सकें। It should also have a good enough purpose from the material point of view. Neither riches nor name and fame are going to be permanent. कुछ भी permanent नहीं है,
चाहे वो आपका नाम है, चाहे वो आपका पैसा है, चाहे वो आपकी प्रसिद्धि है. And this very honest realization could pave the way to do something selflessly in the world. अगर ये honest realization आ जाए तो फिर वो रास्ता भी बन जाता है. वो selfless इंसान बनना पड़ता है उसके लिए पहले. Performing our work sincerely with utmost integrity is the only qualification to move deeper and higher in our pursuit to understand our purpose in this world. अपने काम को बिल्कुल ही उसमें सिंसियरिटी से हम करें, फिडेलिटी से करें, विद अटमोस्ट इंटीग्रिटी से करें, तो फिर इंसान और डीपर और हायर चले जाता है और रियल पर्पस तक उसको पता लग जाता है, अंडरस्टैंड कर लेता है मेरा रियल पर्पस क्या है. विद ईच स्टेप वी गेट टू नो द नेक्स्ट. तो हर स्टेप के साथ हमें अगला भी पता लगने लग जाता है. एंड दैट टेक्स अस क्लोजर टू द मास्टर विद अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट एंड विदाउट एंटेंगलमेंट्स. तो फिर क्या होता है, धीरे 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 आप अपने मास्टर की तरफ और नजदीक पहुंचने लगते हैं. पर या विद द सेंस ऑफ डिटैचमेंट एंड विदाउट एंटेंगलमेंट्स, उसमें कोई अटैचमेंट नहीं रहती है और बिल्कुल भी एंटेंगलमेंट्स के बगैर आप पहुंच जाते हैं. प्रोवाइडेड आप में डिटैच फीलिंग हो और अगर आप हर कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो यही है, हर काम सच्चे सुच्चे मन से, सिंसियरिटी से करना चाहिए. अकॉर्डिंग टू बाबा, सर्विस टू ह्यूमैनिटी एंड हेल्पिंग वन स्पिरिचुअल फ्रीडम इज द हाईएस्ट ग्रेटर वर्क. बाबा कहते हैं दूसरों की सेवा करना, वेलफेयर, to have that philanthropist approach. According to Baba, service to humanity and helping one, एक दूसरे की मदद करना, यही आपको स्पिरिचुअल फ्रीडम दे सकता है और ये बहुत ही उच्च कोटि का काम समझा जाता है. बट व्हाट एग्जैक्टली स्पिरिचुअल वर्क कहते, पर ये तो पता लगे ना एग्जैक्टली स्पिरिचुअल वर्क है कौन सा. कहते ही हैज नेवर आंसर्ड दिस क्वेश्चन. विद्या जी कहते हैं पर इस तरह से उन्होंने कभी डायरेक्टली आंसर भी नहीं दिया. ही हैज लिव्ड it all his life and for a person with a limited mind. पर यही है, वो सारी उम्र ऐसे ही जिए हैं, औरों के लिए जिए हैं. His work is difficult to understand. उनका काम कभी भी समझा नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता. वो कहती है बाबा ने कभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और जो भी उनका जीवन जैसे उन्होंने जिया है वो ही इसका एक्चुअली उत्तर है. और जो सीमित मन वाला बंदा है ना, लिमिटेड माइंड वाला बंदा है, वो नहीं इसको समझ सकता है. Service is not something fanciful. It calls for several internal and external sacrifices. कि सेवा कोई ऐसी कोई बहुत वो फैंसीफुल चीज नहीं है जिसके बारे में आप सोचते हैं. इसके लिए बहुत आपको त्याग करने पड़ते हैं, अपने आप को बहुत भूलना पड़ता है, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं. Service is not something fanciful. It calls for several internal and external sacrifices with dedication and devotion to the purpose. Even small judgment act can pull one down from where one has reached on the path. Grace is the only thing that can provide one with direction and illumination on the path. इधर सेवा ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसका आप सोचते हैं इट्स लाइक रियली फैंसीफुल. इसके लिए आपको बहुत त्याग करने पड़ते हैं और समर्पण भी करना पड़ता है. इस राह पर चलते हुए कोई भी एक भी गलत किया फैसला इंसान को भटका सकता है, वो ऊपर से नीचे गिर सकता है. पर यही है कि अगर मेहर हो जाए आपके परमात्मा की, आपके गुरु की, तो आप फिर सही रास्ते चलते रहते हैं और आपका रास्ते पे रोशनियों से वो भर देते हैं ताकि आप सही रास्ते चलें. पर वही है ग्रेस, मेहर मिलनी चाहिए परमात्मा की, अपने गुरु की. Even if we are able to positively impact a small area in this world by spreading happiness, we have achieved a lot. Identifying that area as a unique calling of the person, responding to the calling and materializing, it is a challenge that provides personal growth. कहते हैं अगर हम किसी भी तरह से अपना छोटा सा योगदान भी देना, तो आप समझ लीजिए, if you think no, I have done my bit, to my best capability, तो फिर आपने बहुत कुछ पा लिया है. तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है. Then we have achieved a lot. Identify that area is a unique calling of the person. बस यही है, ऐसे क्षेत्र की ऐसी चीज की पहचान करना व्यक्ति के लिए एक यूनिक सी कॉलिंग हो जाती है और एक चुनौती का भी काम करता है. सो यही है, जैसे भी ये चैलेंजेस आते हैं उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए. ये आपकी पर्सनल ग्रोथ बढ़ाता है. जैसे इसमें भी तो लिखा है ना, सर्विस इज नॉट समथिंग फैंसीफुल, इट कॉल्स फॉर सेवरल इंटरनल एक्सटर्नल सैक्रिफाइसेस. तो कुछ भी आसान नहीं है. जब बुल्ले शाह जी भी गए थे अपने इनायत पीर के पास, तो बुल्ले शाह बाबा ने अपने पीर से क्या कहा, अरे मुझे खुदा से मिला दो, मुझे खुदा से मिला दो. तो पीर शाह इनायत ने क्या जवाब दिया, पहले खुद को भुला दो. तो ये तो है ही है, पहले आपको अपने आप को खुद को भुलाना पड़ता है.
तभी आप परमात्मा को पा सकते हैं। इतना आसान नहीं होता है। जिसने अपनी खुद ही को भुला दिया तो वो ही पा सकता है। जो जो असली सेवा होती है उसमें बहुत सैक्रिफाइसेस होते हैं। कई लोग तो ऊपर से लगता होगा इट्स क्वाइट फैंसी, एंड बट नो, इन रियलिटी इट्स नॉट लाइक दैट। तो वही बाबा ने बताया है। पर ये क्या, इन चीजों से विकास भी होता है। अगर आप दुनिया में आके अगर आपने कुछ भी थोड़ा सा भी अपनी किसी तरह से फ्रेग्रेंस कहीं छोड़ दी, इन द सेंस थ्रू योर गुड डीड्स, देन आपका आना सफल है। तो हर इंसान एक स्पेशल व्यक्ति है। भगवान ने वो सौगात दे के भेजा है हर एक में वो कुछ ना कुछ गुण भेजे हैं। और कहीं जिस तरह से भी आप उनकी बनाई हुई दुनिया में, जिस तरह से भी आप अपने कोई भी अच्छाई से किसी भी तरह का आप काम कर सकते हैं, नेक कार्य कर सकते हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो किसी भी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं क्या करूं। नो, हर एक हर इंसान स्पेशल है, हर आत्मा स्पेशल है, क्योंकि वो ईश्वर गुरु जी ने बनाई है। तो पर हमें ये जरूर देखना है किस तरह कुछ तो ऐसा कुछ कार्य करें जिसमें दूसरों की जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी ला सके, तो फिर आना सफल है। और इससे आपकी सोल भी इवॉल्व होती है। At the end of the day, you also get gratification and satisfaction that you could do something for others. तो ये जरूर जिंदगी में करना चाहिए। आगे है टॉन ऑफ रियलिटी, वास्तविकता का उदय। The motivation, विद्या जी कहती हैं, the motivation to write this book comes from my beloved Meher Baba. तो मुझे ये प्रेरणा किसने दी? ये तो हमें बस शुरुआत से ही पता लग गया था, ये बाबा ने खुद ही लिखवाई है। The motivation to write this book comes from my beloved Baba, who encouraged me to tell this story. उन्होंने मुझे encourage किया कि नहीं, तुम लिखो। I thought there was enough literature available in his own words. तो मेरे को तो ऐसे लगता था बहुत लिटरेचर, बहुत साहित्य उनके ऊपर अवेलेबल है। Besides, several other ardent devotees have already said everything in terms of their own experiences and about Baba. तो कहते सिर्फ मैं ही तो नहीं ना, आगे उनके बहुत devotees ऐसे हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को लेके, बाबा के साथ एक्सपीरियंसेस को लेके बहुत कुछ ऐसा उन्होंने बोला है या किताबें भी लिखी हैं। He needs no introduction and requires no explanation. अरे उनको तो कोई क्या उनके बारे में बताएं, हम कुछ थोड़ी बता सकते हैं उनके बारे में, क्योंकि उनको कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं। ऑलरेडी उनके इतने डेवोटीज हो चुके हैं जिन्होंने अपने इतने अनुभव बताए हैं। और मुझे लगता था कि नहीं, बहुत लिटरेचर है उनके ऊपर और इतने डेवोटीज भी हैं, और बाबा को तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं, सबको पता ही है वो कौन है। Seeing him with my eyes closed, talking to him and experiencing his love and presence is the only things that give me happiness. कहते हैं उनको जब बंद आंखें करती हूँ तो उनको देखती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, उनका प्यार महसूस करती हूँ, उनकी प्रेजेंस महसूस करती हूँ, तो और क्या मुझे कोई खुशी दे सकता है। Which is greater than all the happiness of this world. अरे ये खुशी दुनिया की सारी खुशियों से ऊपर है। This is the ultimate, the real, the blissful thing which one could ever think of. Seeing Baba in everything and experiencing his presence all the time, his blessings and grace. तो यही तो सबसे बड़ी बात है ना, बाबा को हर कहीं नजर आते थे उनको, और उनके बारे में महसूस करना, उनकी प्रेजेंस महसूस करना, इससे बड़ी ब्लेसिंग और ग्रेस नहीं हो सकती है। आई ऑलवेज वांटेड टू रिमेन इन बाबा's वर्ल्ड। तो मुझे यही होता है, बस बाबा की दुनिया में ही हमेशा से रहूं एंड नॉट शेयर एनीथिंग अबाउट द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। और मुझे ये नहीं होता था कि मैं अपने अनुभव बताऊं किसी को। Always wanted to remain in Baba's world and not share anything about the spiritual experiences I had that thrilled the mind. However, Baba encouraged me to write, but फिर भी बाबा ने मुझे encouragement दी कि नहीं तुम लिखो। But after 1 year, I still doubted my ability to write a book. So she says, I was in dilemma. I was not sure that will I be able to write the book or not, because I was doubting my ability. But Baba had some other plans for her. At last, it came as an order where he put everything on hold for me until I finished this project. तो फिर जब उनका ऑर्डर आया तो उन्होंने मेरे सारे काम ही रोक दिए जब तक मैं उनका ये स्पेशल, ये डिवाइन काम ना करूं। My work at office was not going forward as I was not getting any solutions. ऑफिस में भी मुझे मुश्किलें आई, मेरा काम आगे नहीं बढ़ा, मुझे कुछ तरह के solutions ही नहीं मिल रहे थे। My team and I had great ideas, but things were not moving at the pace we expected. तो कहती जो मेरी टीम थी और मैं, हमारे पास बड़े अच्छे इनोवेटिव आइडियाज थे, बट कुछ बैठ नहीं रहा था, कुछ आगे बढ़ नहीं रहा था, बस वो at snail's pace, it was not moving ahead जिस तरह से हम सोच रहे थे। Whenever I asked for clarity, Baba would only say, first complete the book and the rest will be done. तो इसी करके तो उनको इसे मुश्किलात आ रहे थे, क्योंकि जो बाबा का डिवाइन वर्क था वो बाबा उनसे पहले करवाना चाहते थे। जब हमें भी होता है, जब गुरु जी हमसे कोई काम करवाना चाहते हैं, अगर हम उस पे
इतना ध्यान नहीं देंगे या उस पे नहीं देंगे तो कभी हो सकता है हमारे बाकी काम पूरे हों, हर चीजों में मुश्किलात आएंगी और फिर वो, क्योंकि वो हमसे कुछ और करवाना चाहते हैं. So whenever asked for clarity, Baba would only say, first complete the book and the rest will be done. अरे पहले किताब तो पूरी करो, जो मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है वो तो तुम सुन नहीं रही हो, बाकी सब कुछ हो जाएगा. I do not understand how this book is going to be relevant and helpful to readers. So at that time she had no idea कि ये किताब मेरी किस तरह से काम आएगी और किस तरह से मदद करेगी. Maybe he has a plan and I'm just an instrument and seeing it to its fulfillment. तो ये तो है यही है कि उनके पास तो एक कोई शानदार प्लान होगा, डिवाइन प्लान होगा. मैं क्या हूं? मैं तो कुछ भी नहीं, एक तो माध्यम हूं. In this world of confusion and chaos, if this work provides clarity to even one individual, Baba's work will be done. तो कितनी बड़ी बात है. सभी यही कहते हैं, सभी महापुरुष यही कहते हैं, अगर किसी एक व्यक्ति का भी काम हो गया तो सोचो हमारा काम भी हो गया. तो ऐसी खुशी ही मिलती है अगर हम गुरु जी हमारे द्वारा किसी को जुड़वाते हैं या जैसे भी, अगर वो इंसान सच्ची राह पर निकल जाता तो हमें भी लगता है कि नहीं हमारा जीना सफल हो गया. कि और बहुत खुशी मिलती है जब कोई और इंसान भी गुरु जी के साथ जुड़ जाता है और उसी सच्चे मन से जुड़ता है. तो इट यू फील योर लाइफ इज worthwhile. So बहुत जरूरी होता है अपने आप को किसी भी तरह किसी को अच्छे काम में जोड़ना. In this world of confusion and chaos, where there is so much of in this world where there is so much of confusion, so much of chaos, तो वो कहते हैं तो अगर हम इस तरह कोई, अगर हम एक भी व्यक्ति और एक भी इंसान को जोड़ दें तो बाबा's work will be done. Life is not always about pursuing selfish and material goals. कहते कब तक अपने लिए सोचते रहोगे. लाइफ का ये मतलब थोड़ी है सिर्फ अपनी अपनी हम सेल्फिश पर्पसेस के पीछे भागे, मटेरियल गोल्स के पीछे भागे. सबसे बड़ा डिवाइन काम होता है किसी को अच्छा रास्ता दिखाना, परमात्मा के साथ जोड़ना, सच्चे सुच्चे मन से जोड़ना, परमात्मा की उस असली घर के बारे में बताना और आत्मा की उन्नति करवाना. उसके लिए अगर बंदा जुड़े कि गुरुजी के साथ मेरा कार्मिक बैगेज भी खत्म हो जाएगा. यस, प्रॉब्लम्स गोना कम, तो वो कैसे क्लियर करेंगे ना क्लटर. उसके लिए तो वो उस चीजों से गुजरना ही पड़ेगा. सिर्फ मांगने के लिए नहीं जुड़वाना चाहिए, असली घर ले जाने के लिए और आत्मा की प्रगति के लिए. उसके बाद क्या है, बाबा सेज, my wish for my lovers has always been to pursue goal realization and everything I do is only in this direction. बाबा कहते हैं my wish, मेरी जो इच्छा है मेरे भक्तों के लिए, मेरे लवर्स के लिए यही है कि उनको गॉड रियलाइजेशन का पाथ मिल जाए और and everything I do is only, और मेरा जो भी कार्य होता है इसी के लिए होता है. तो अल्टीमेटली यही है कि गॉड रियलाइजेशन के बारे में पता चल जाए. बस मेरी यही है, परमात्मा को जो साक्षात्कार है बस वो प्राप्त हो जाए. Often people get confused with my orders and mix it with their own agenda and thoughts. कहते कहता मैं क्या हूँ और अपने एजेंडा और थॉट्स में लेके उसमें टेम्परिंग करते हैं, मिक्स अप कर देते हैं, मिंगल कर देते हैं, सब कुछ कंफ्यूजन सी क्रिएट कर देते हैं. When someone can live my wish selflessly, they have attained clarity. जो जिसने स्वार्थ रहित होकर मेरा पालन किया उसको सब कुछ मिल जाता है. तो यही है, गुरुजी भी हमसे यही चाहते हैं, जो उनके ऑर्डर्स थे, जो जिस तरह से हमसे जीवन हमें वो कहते हैं कि जियो, अगर हम उसमें बस अपने और एजेंडाज लें और अपने विचार बीच में वो करके कुछ ऐसी खिचड़ी सी पका दें तो फिर वो नहीं चलता है. क्योंकि यही होता है कि सेल्फलेस होके उनके ऑर्डर को माना जाए, उस पे अपनी जिंदगी जी जाए, तभी क्लैरिटी आती है जिंदगी में. बाबा कहते हैं विद्या, my wish for you is to get absolute clarity for yourself, be a torchbearer for others and help them realize themselves. This is the work you have to do in this world. तो बाबा क्या कहते हैं, विद्या मेरी बात सुनो, मैं ये चाहता हूँ कि पहले तो अपने ऊपर वो पूरी क्लैरिटी लेके आओ, पूरी क्लैरिटी वाली सोच लेके आओ और उसके बाद तुम टॉर्च बेरर बन जाओ. तो दूसरों को रास्ता दिखाओ, just like an usher the way. और उस तरह से रास्ता दिखाओ, पर उससे पहले सबसे पहले अपनी सोच को क्लियर करो, क्लैरिटी लाओ, तभी तो तुम दूसरों को रास्ता दिखा पाओगे ना. और उनको भी मदद करो and help them realize themselves, ताकि वो अपनी असली सच्चाई को जाने कि किस पर्पस के लिए वो दुनिया में आया है. This is the work you have to do in this world. It does not mean you become a guru or establish an ashram. बाबा कहते मेरा मतलब ये तो नहीं है कि तुम गुरु बन जाओ या कोई आश्रम अपना खोलो.
You are the proof of my work to see reality as it is while still being in this world. कहते और इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा मेरे काम का? तुम अभी भी इस दुनिया में हो, तुम प्रूफ हो कि दोबारा से जन्म लेके मेरे साथ जुड़ के ये प्रूफ दो लोगों को मेरे काम का, क्योंकि अभी भी तुम हो, तो मेरे साथ जुड़ी हुई हो. You are the product of my efforts to show humanity that however chaotic the outside world is, one can stay calm and united with God if there is immovable faith in the heart and honesty in actions. कहते हैं तुम वही तो वो हो ना, तुम प्रोडक्ट हो मेरे मेरे वो एफर्ट्स का. तुम ह्यूमैनिटी को बताओ कि दुनिया के बाहर जितना मर्जी कमोशन हो, नॉइज हो, जोन सा मर्जी रौला हो, कुछ भी हो, पर अगर इंसान अंदर से शांत हो, ट्रैंकुल स्थिति में हो, तो ईश्वर के साथ जुड़ा रहे, कुछ भी उसको चीज हिला ना सके, वो ही इमूवेबल फेथ होता है. इन द हार्ट एंड ऑनेस्टी इन एक्शन. कहने का मतलब है संसार में तो वो चीजें होंगी, संसार तो चलता ही रहेगा, सब ये chaotic world is like that, chaos तो चलती रहेगी, उलझन जितनी मर्जी हो, पर अगर व्यक्ति अंदर से शांत होके प्रभु के साथ मिल जाए, तो यही एक सच्ची भक्ति होती है. That is the honesty in action. क्योंकि life is that, life is like that, you know, world, outside world is always has always been like that and will be like that. पर उस चीज को आप अंदर से अपने आप को कोई चीज आपको हिला ना सके, वो फिर ऑनेस्टी होती है आपकी भक्ति में, और उस तरह का विश्वास दिल में होना चाहिए. You were with me in your past life and during that time I cleared all the clutter and prepared you for a bigger goal. कहते तुम्हें तो पता ही है, पुराने जन्म में तुम मेरे साथ थी, और मैंने पुराने जन्म में जो भी था तुम्हारा बचा कुचा जो संस्कार थे ना, वो जो जमा हुए थे ना क्लटर की तरह, मैंने उसको साफ कर दिया, क्योंकि मुझे तुम्हें बड़े गोल के लिए तैयार करना था. तो जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है. तो कहते पिछले जन्म में भी तो तुम मेरे साथ ही, जितने भी ऐसे संस्कार थे जो नहीं चाहिए थे, वो मैंने सब क्लियर कर दिए, ताकि मैं तुम्हें एक बड़े गोल, बड़े लक्ष्य के लिए तैयार करूं. इन दिस लाइफ यू हैव ग्रोन फर्दर. अब देखो तुम इस लाइफ में ऐसे ही तो नहीं ना आगे पहुंच गई हो, इवॉल्वमेंट तुम्हारी ऐसे तो नहीं ना हुई है, सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ. एंड आई एम ऑलवेज देयर विद यू एज योर इनर सेल्फ. तो मैं तुम्हारा अंतर्मन बनकर तुम्हारे साथ हूँ हमेशा से. आई रिजाइड इन योर हार्ट. तो ईश्वर का घर हमारा दिल ही होता है. अगर ये इंसान समझ जाए, तो इंसान अपनी चुस्तियां, चालाकियां, चमचागिरियां, चोरियां, चुगलियां सब छोड़ देगा, क्योंकि वही तो चीज है. हमारी सारी उम्र इन भगवान को बाहर ढूंढने में निकल जाती है, जबकि वो तो अंदर विराजमान है. हमने अपने आप को अंदर तो कभी टटोला ही नहीं है. हम हर बारी बाहर ही भागते हैं. तो मन को भी सत्संग बनाना चाहिए, अपने हृदय को भी कोमल निर्मल करके सत्संग बनाना चाहिए. सबसे पहले गुरु जी का आसन हृदय में लगाएं. I love you more than anyone else can ever love you, and you're so dear to me and you can't even imagine. So imagine Baba's love for Vidya. He says, I love you more than anyone else. अरे तुम्हें कोई प्यार कर ही नहीं सकता जो मैं तुम्हें करता हूँ, और कभी भी तुम्हें उस तरह का प्यार नहीं मिलेगा. तुम मेरे बहुत करीब हो, तुम सोच भी नहीं सकती हो, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय में निवास करता हूँ. ऑन दिस जर्नी यू हैव ट्रैवल्ड माइल्स होल्डिंग माय हैंड. इस यात्रा में तुमने मेरे साथ हाथ पकड़कर मीलों तक यात्रा की है. I'm holding you till the very end. और मैं तुम्हें अंत तक थामे रहूंगा. You have reached a stage where you can never get separated from me anymore, and I'm present in you always. और अब तुम्हारी वो स्थिति आ गई है, अब तुम मुझसे अलग हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तो तुम्हारे अंदर रहता हूँ. This unity is rare and seldom possible for anyone to achieve. तुम्हें पता है ये दुर्लभ है, ये आसानी से नहीं मिलती है, ये बहुत रेयर है जी ये यूनिटी. एंड उनके मास्टर, उनके परमात्मा, उनकी डिवाइन लाइट उनसे खुद कह रहे हैं, एंड seldom possible for anyone to achieve. बहुत कम किसी को मिलती है. By my grace, my lovers can reach here with utmost ease. पर यस, अगर ईश्वर की कृपा मेहर हो जाए गुरु जी की, तो वो फिर बहुत सहज भाव से ही ये स्थिति मिल जाती है. तो इस तरह से उनका क्या प्यार देखने को मिलता है मेहर बाबा जी का विद्या जी के लिए. तो जो जन्म दोबारा से मिला, जब हमें भी, हम सबको ये जन्म मिला, हम कहते हैं ना हमें जन्म क्यों मिला, अरे कोई ना कोई कारण होता है. और आप भी तो डिजाइन करके आए हैं प्लान.
ये तो बहुत बड़ी सच्चाई हमें इस लव द स्पिरिट और भी जितनी भी हमें बुक्स पढ़ते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस और आफ्टर लाइफ के ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं, तो उसमें यही होता है कि आप अपना डिवाइन जो भी है डिजाइनिंग करके आते हैं, ब्लूप्रिंट लेके आते हैं, किस किस तरह के लेसन सीखने हैं। और यहाँ तो साक्षात मरने से पहले भी वो बाबा के नजदीक थी, बिकॉज उन्होंने यही मांगा था नीलू जी ने कि जब मैं मरूं तो बाबा आपके साथ हूं। तो उनका जब वो बॉडी से बाहर भी निकलते हैं तभी भी वो जाने को तैयार नहीं होते, तो बाबा कहते नो यू हैव टू गो नीलू लीव। तो फिर दोबारा से जन्म कैसे मिला? वो उस जन्म में फिजिकल प्रॉक्सिमिटी साथ में थी, इसमें स्पिरिचुअल है। और ये बहुत बड़ी बात है। तो ये तो दिस इज अ ब्यूटीफुल बुक व्हेन यू कम टू नो। हमारा आपका पूरा फ्लैशबैक दिखाया जाए कि मैं तो इस जन्म में डॉक्टर थी और एक पुरुष रूप में थी और बाबा के साथ इतनी क्लोजनेस थी। और उस जन्म में नीलू जी बहुत डुसाइल रहे हैं, बहुत शाय रहे हैं। हमने पढ़ा है वो बाबा की आंखों में भी नहीं देखते थे। ही वुड नॉट लुक बियॉन्ड द नीज और लाइक दैट, बिकॉज ही वाज इन ऑ ऑफ हिम। और इस इधर तो वो इन्होंने अपना जिस तरह से इस बारी जो इनकारनेशन हुए हैं विद्या जी, इसमें तो शी कुड टॉक एनीथिंग एंड एवरीथिंग विद बाबा, बाय हैविंग मील्स विद हिम, एंड ही वुड बी सिटिंग इन द कार एंड ही वुड गाइड अबाउट एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग। तो वो प्रॉक्सिमिटी बहुत देखने को मिली है इस जन्म में। उसके बाद हम पढ़ते हैं, intellectualization of spiritually does not make the person spiritual। हाँ, ये तो नहीं है ना कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो गए हैं तो आप बहुत स्पिरिचुअल है अंदर से, उस तरह से बाहरी ज्ञान से कुछ नहीं मिलता है। ये तो मेहर जब हो जाती है तभी सब चीजों का पता लगता है। Intellectualization of spirituality does not make the person spiritual। Spiritualization means sacrificing the self for the real self to emerge। ये तो सही बात है। उसका असली मीनिंग क्या है? अपने खुद ही को मारना पड़ता। जैसे बुल्ले शाह ने वही कहा ना बाबा ने अपने पीर से, मुझे खुदा से मिला दो। तो पीर शाह इनायत ने जवाब दिया, पहले खुद को भुला दो। अरे अपने सैक्रिफाइस अंदर से आपको अपने आप को खत्म करना पड़ता है। स्पिरिचुअलिज्म मीन सैक्रिफाइसिंग द सेल्फ फॉर द रियल सेल्फ टू इमर्ज। अपने आप को अंदर से खत्म करोगे तभी तो वो जो रियल है वो बाहर तक आपको असली चीज मिलेगी ना। When my love is bestowed, everything else disappears and only purity remains। अरे जब मेरे प्यार की बरसात होती है, जब मेरे प्यार का आशीर्वाद मिलता है तो सब कुछ गायब हो जाता है। तो क्या रह जाता है? ओनली प्योरिटी, पवित्रता। बस सब कुछ हट जाता है तो पवित्रता ही मिलती है। The purity in heart and clarity of mind can make any journey possible with utmost care। अगर दिल साफ हो ना, पवित्र हो, साफ दिल और स्पष्ट मन हो, किसी भी यात्रा को आसानी से संभव बना देते हैं। तो गुरु जी भी तो कहते हैं ना, दिल मन चंगा तो टूटी दा पानी भी गंगा। तो यही तो है, अपने मन को साफ रखना चाहिए, दिल में प्योरिटी होनी चाहिए। बाहर से आप जितना मर्जी दिखा दें यू आर प्योर, oh nothing can be hidden from God, from your guru, from your master, so there is no point of posing that you're pure and pious। The purity should reflect from your heart, and Guruji knows it all। The purity in heart and clarity of mind can make any journey possible with utmost care। एक तो दिल साफ हो, मन में कोई क्लैरिटी ना हो, उस तरह की किंतु परंतु ना हो, सारे कॉबवेब्स जब हट जाते हैं तो फिर आपकी जर्नी में थोड़ी ईज मिल जाती है एटलीस्ट, क्योंकि आपको सब कुछ पता लगने लग जाता है। Your life is the story of how I take care of my loved ones beyond their conception and imagination, and there will be several such stories emerging in the future। कहते हैं तुम्हारी जो स्टोरी है ना विद्या, ये यही दिखाएगी, ये क्या दर्शाएगी, how it will depict to others that I see how I take care of my loved ones beyond their conception। ये यही दर्शाएगी मैं किस तरह से अपने प्यार करने वालों, किस तरह से ध्यान देखता हूँ, रखता हूँ, वो सोच भी नहीं सकते हैं। और इस तरह से बहुत 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 कहानियां भविष्य में निकल कर आएंगी। जिस तरह से हम देखते हैं गुरु जी की भी बहुत बहुत डिवाइन होली बुक्स आ रही हैं, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, और न जाने और कैसी इतनी किताबें आएंगी। और उसी से हमें यही पता लगता है कि गुरुजी किस तरह से अपने संगत का ध्यान रखते हैं, अपने भक्तों को प्यार करते हैं। ऐसा असीम प्यार कभी भी नहीं मिल सकता, ये सिर्फ आपको डिवाइन लाइट ही कर सकती है। सेल्फलेस प्यार, भरपूर प्यार, बिकॉज गॉड इज लव। Neelu was my favorite follower who unquestionably followed everything that I said। He never doubted me and stayed pure at heart, and now he's doing the work I want him to do। तो बाबा क्या कहते हैं कि पिछले जन्म का बताते हैं कि जो नीलू था ना, मेरा सबसे प्यारा फॉलोअर था। क्यों? क्योंकि उसने कभी डाउट नहीं किया और इतना दिल का साफ था
एंड नाउ ऑल्सो वो वही काम कर रहा है जो मैं कहता हूँ। तो जो भगवान को खुद पता होता है मेरे केड़े पगड़ दा दिल साफ हैगा, और कौन दिखावा कर रहा है, कौन छली है, कौन कपटी है, वो सब पता होता है। These words come from Baba without making any deliberate effort from my side. They're spontaneous and he speaks only when he wants to with complete authority and clarity. कहते हैं ये जो बाबा, ये जो शब्द है ना, मैंने कुछ ऐसा नहीं कि मैंने प्रयास किया है, ये बाबा के द्वारा नेचुरल तरीके से ही निकले हैं। और क्योंकि बाबा तभी बोलते हैं जब वो चाहते हैं, उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता, मजबूर नहीं कर सकता। और कभी बाबा अवसर भी देते हैं कि मैं पेन उठाकर उनके बारे में लिखूं। कहते हैं these words come from Baba without making any deliberate effort from his side. They're spontaneous and he speaks only when he wants to with complete authority and clarity. फिर वो जब बोलते हैं तो उनकी भाषा में an authority आ जाती है, clarity आ जाती है, and he speaks when he wants to speak. There are times when he gives me an opportunity to pick up a pen and note down when he says what he says, and there are times when I am only supposed to listen to him carefully and understand. कहते ऐसे टाइम आते हैं जब वो मुझे चांस देते हैं कि मैं अपनी कलम उठाऊं and I would jot down what he's saying. पर कई बार ऐसा भी आता है कि मुझे सिर्फ सुनना ही होता है, उनको बहुत ध्यान से, केयरफुली से, और समझना भी होता है. Sometimes I have said things to others that even I don't understand. कहते कई बारी तो ऐसा होता है मैं ऐसी चीजें दूसरों को बोल भी जाती हूँ जो मुझे खुद को नहीं समझ आती हैं. His amazing ways of communicating cause the mind to be still, and there is ecstasy in feelings with no words to express them but only tears of joy. कहते अब क्या बताएं, ये जो उनके अलग अलग तरीके हैं ना कम्युनिकेट करने के, ये तो मुझे स्थिर कर देते हैं, पर एट द सेम टाइम इतना एक्सटेसी से, इतने जॉय से, एक्सिलरेशन से मुझे भर देते हैं, मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं कैसे बयान करूं. बस my eyes get welled up and tears start rolling. बस मेरे आंसू बहते हैं नीचे, you know, out of that immense divine feeling in the love for her master. I often feel sad and I repeatedly break into tears when I think about my time with Baba. कहते फिर मैं बहुत उदास हो जाती हूँ और मैं रो भी पड़ती हूँ बीच बीच में, जब जो मेरा बिताया टाइम था ना फिजिकल रूप में बाबा के साथ, जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ. ये तो सही बात है, जिन्होंने भी गुरुजी के साथ उस तरह सच्चे मन से समय बिताया होता है तो वो बड़ी मुश्किल से आपको, you know how you have to control your tears because वो नहीं बुलाया जा सकता. His physical presence had a different impact on the mind and heart where everything else would disappear from sight and only he remained. कहते जो उनका physical presence था ना, उसका तो अलग ही प्रभाव था. His physical presence had a different impact on the mind, मन में और दिल में, where everything else would disappear from sight and only he remained. जब सब कुछ और गायब हो जाता है तो सिर्फ क्या रह जाते हैं, सिर्फ वो. His very darshan was so fulfilling and one was so overwhelmed with devotion. तो जब भी उनके दर्शन का मौका मिलता था इतने फुलफिलिंग होते थे, आपको तृप्ति मिल जाती थी और आप उस डिवोशन से भर जाते हो. with devotion that material pleasures felt insignificant in front of him. अरे material pleasures तो कुछ भी नहीं है, ये तो रुलते हैं, ये कुछ भी नहीं है. जब आप अपने, अगर आपको असीम प्यार हो अपने गुरु के साथ, तो फिर ये जो दुनियावी चीजों के जो मटेरियल प्लेजर्स है ना, that they don't fascinate you anymore because and it would be even wrong to compare the material pleasures with the bliss you get from your guruji's darshan. It is like divine. I miss his physical presence particularly when I visit Mehrabad. कहते खास करके जब मैं मेहराबाद पहुंचती हूँ ना, क्योंकि उनको वो सारा समय याद आ जाता उस टाइम. तो she says, I can't tell you how much I miss you, how much I miss him. I miss his physical presence, particularly when I visit Mehrabad, Mehrazad, and every other place where I've been with him. और हर वो जगह जहां पर मैं उनके साथ जाती थी, उस रूप में तो वो पुरुष थे, तो उस टाइम पे वो जाते थे. It is not the place but spontaneous memories of him that make me feel nostalgic until it cheers me up and makes me feel his presence even now. कहते बात सिर्फ जगह की नहीं है, मैं कौन कौन सी जगह जाती थी, बात तो ये है जो स्पेशल मेमोरीज, वो जो मैं अब चेरिश करती हूँ, मुझे नॉस्टैल्जिक भी कर देते हैं. पर बाबा को आता है, वो तरीका आता है, जब भी मैं उदास होती हूँ वो मुझे किसी ना किसी तरह खुश कर ही देते हैं, अपनी मौजूदगी का सबूत दे ही देते हैं ताकि मैं उदास ना हूँ. I should not feel blue anymore. This is Baba's love. From the time I heard about Meher Baba in this life today, there was not a single day when his presence was not felt in one way or the other. कहते
जब से मैंने बाबा के बारे में जो भी अनुभव किया या उनके बारे में जाना, तो एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे उनकी प्रेजेंस ना फील हो। किसी ना किसी तरीके से वो अपनी मौजूदगी का मुझे महसूस करवा दिया करते थे, महसूस करवा दिया करते थे। During Baba's lifetime, we were all simple people with no great intelligence. Our lifestyle was basic. वो अपनी पुरानी यादें बता रही हैं बाबा के साथ। हमारा ऐसे था, हमारा जीवन बहुत सिंपल साधारण था, कुछ ऐसा नहीं था खास हमें बहुत नॉलेज है, बहुत हम इंटेलिजेंट है। हमारा जो लाइफस्टाइल भी बहुत सिंपल और मॉडरेट और बेसिक था. He never allowed us to imagine anything spectacular in the material and spiritual realms. तो बाबा ने इनको रखा ही ऐसे था। तो वो उनको उस तरह से उनको वो जो दुनियावी की चीजों की वो चमक भी उनके ऊपर नहीं चढ़ने दी थी। उन्होंने उनको रखा ही उस सिंप्लिसिटी से था, एंड मेड एवरीथिंग एज नॉर्मल एज इट शुड बी फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन। हर चीज हमारे लिए स्वाभाविक और नॉर्मल ही रखी थी। इवन नाउ हिज वेज ऑफ टीचिंग अस सिंपल। तो विद्या जी कहते हैं अभी भी जिस तरह से वो टीच करते हैं बहुत ही सहज तरीके से, सिंपल तरीके से। हिज प्रेजेंस इज सो नेचुरल एंड हिज एक्सपीरियंसेस आर स्पेशल। कहते हैं उनकी प्रेजेंस इतनी स्वाभाविक है ना, और जो भी है उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, पर यस दे आर वेरी प्रेशियस, दे आर वेरी वेरी स्पेशल, बहुत ही विशेष है। टू एक्सपीरियंस हिम आई हैड टू गो बियॉन्ड द ऑब्वियस। तो कहते हैं बाबा का अनुभव लेने के लिए पहले तो मुझे स्पष्ट दिखाने वाले जीवन से अलग तरीके से जीवन जीना पड़ा। I had to believe in myself, मुझे अपने पर विश्वास रखना पड़ा, and more than myself, I had to believe in him, और अपने आप से भी ज्यादा बाबा पर विश्वास रखना था। Not only listen to him attentively, but also do what he said. सिर्फ मेरा काम यही नहीं था कि मैं उनको बड़े ध्यान से सुनूं, पर वो करूं भी। You know, I had to obey his orders. जो भी वो मुझे कहते हैं कि मैं उसको बड़े ध्यान से वो करूं। Even now, there are times when he wakes me up at midnight and asks me to do things and I simply obey without questioning him. कहते अभी भी तो ये होता है। कुछ नहीं पता बाबा का कब मुझे आधी रात को उठा ले और मुझे बोले भाई ये कर, तो मैं क्या करूं? मुझे तो करना है, मुझे तो हुक्म मानना है, पर मुझे उनसे कोई सवाल नहीं करने हैं, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करने हैं। जो मुझे बाबा ने जैसा किया वैसा करती आई और वैसा ही करती हूँ। I don't say it requires great effort to obey him, but I would definitely say it takes a lot of effort to have faith in him and to be totally genuine in front of him. He can see through us as well as see all our past and future lives. कहते मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मुझे उनकी आज्ञा मानने के लिए बहुत कठिनाई होती है, मेरे से भी हो जाता है, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि उन पर विश्वास करना और उनकी जो उम्मीदों पे खरा उतरना, उस पे आपको बहुत फिर मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, अपना एफर्ट करना पड़ता है। अरे बाबा से हम थोड़ी कुछ छुपा सकते हैं। वो कहते हैं अपने मास्टर से नहीं हमारा कुछ छुपा है, उनको मेरी पिछली जिंदगी, पुराने जन्मों का और हमारे आने वाले जन्मों का बहुत कुछ पता है। Maybe I'm back here to finish some unfinished work, or I'm just an instrument in his divine plan. कहती हैं जो मेरा बचा खुचा जो भी मेरा कुछ था ना, शायद वो मैं डिवाइन वर्क जो मेरा रह गया था, अनफिनिश्ड था, मैं उसके लिए आई हूँ, और मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ उनके डिवाइन प्लान का। गॉड रियलाइजेशन, his divine plan, God realization doesn't bother me, nor do the spiritual plans. कहते जो भी उनका ये जो गॉड रियलाइजेशन का पाथ है वो मुझे बॉदर नहीं करता है, ना ही मुझे वो स्पिरिचुअल प्लेन्स। आई लव हिज कंपनी एंड आई एम एन्चेंटेड बाय हिज प्रेजेंस एंड वेज ऑफ हेल्पिंग माय ग्रोथ। बस मुझे सिर्फ क्या मुझे एन्चेंट करता है, इनामर करता है उनकी प्रेजेंस, और जिस तरह से वो मेरी ग्रोथ करवा रहे हैं। कहते हैं मुझे उसमें कोई इतनी वो इंटरेस्ट नहीं है कि मेरी गॉड रियलाइजेशन हो रही है नहीं हो रही है, या जो आने वाले स्पिरिचुअल प्लेन्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। What I love is that I'm just enchanted by his presence and the ways he's helping me, helping my grow. That's it. Yes, there are learnings every day and I get better with each passing day. कहते हैं हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हर दिन मैं बेहतर ही होती जा रही हूँ। I get better with each passing day. He has shown me not only my past lives, but also the people present in this incarnation from my past lives. कहते सिर्फ उन्होंने मुझे मेरा पूर्व जन्म ही नहीं दिखाया, पर मुझे वो भी लोग दिखाए जो पिछले जन्म में मेरे साथ थे और इस जन्म में भी हैं। तो बाबा ने उनको हर चीज दिखाई। शुरुआत में तो हमने देखा ना, जब नीलू को वो स्पिरिचुअल प्लेन से भी लेके गए, सारी सच्चाइयां दिखाई, और विद्या जी को वो कितनी बारी वो टनल से लेके गए, कितनी बारी उस जगह से उन्होंने ट्रेवल करवाया। तो कोई चीज ऐसी रह तो गई नहीं जो विद्या जी को ना उन्होंने दिखाई हो। तो प्रोबेबली उनका जन्म ही दोबारा से इस करके हुआ था, जो भी उनका पीछे रह गया था। तो इस जन्म में शी गॉट अ ग्रेट स्पिरिचुअल पुश। तो इस तरह से अगर मास्टर खुद आके आपको
डायरेक्ट एक्सपीरियंस दे और सब कुछ दिखाएं, तो इससे बड़ी बात नहीं होती है। पर वो जैसे कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, तो उस जन्म में वो किस तरह से डिसाइल रहे, उन्होंने मास्टर का, अपने मेहर बाबा जी का एक एक नीलू जी ने कहना माना। वो बाबा खुद कहते हैं तुमने मेरे ऑर्डर्स माने, तुमने कभी भी डाउट नहीं किया, जो मैंने कहा तुमने किया। जब वो नीलू जी नहीं जा रहे तब भी कहा नीलू तुम हर बारी वही करते आए, जो मैंने कहा अब भी वही करो, लीव द प्लेस, जस्ट गो फ्रॉम हियर। और अब वो एक औरत और महिला रूप में आई और बाबा ने उनको फ्रीडम भी दी, बताओ कहाँ जन्म लेना है, किस तरह के पेरेंट्स और जो भी है। उस समय जो भी उनको लगा कि मेरी प्रगति के लिए, और ये भी पूछा तुम्हें फास्ट ट्रैक लाइफ चाहिए कि स्लो प्रोसेस चाहिए, तो उन्होंने फास्ट ट्रैक चुनी। तो बहुत अच्छा किया, फिर वो फास्ट ट्रैक चुन के क्या होता है, एक ही जन्म में सब कुछ पूरा हो जाता है, नहीं तो फिर धीरे 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 इंसान लगा रहता है। तो इस तरह से हमें भी चॉइसेस मिली होंगी। तो फिर जिनको बहुत भी सफरिंग्स आ रही हैं, ये हम खुद भी चुन के आए हैं। तो सफरिंग्स आर द रियल ब्लेसिंग्स, बिकॉज द रियल होम कमिंग, द रियल होम इज वेटिंग फॉर यू। So probably you would not have to come again for those sufferings. Maybe you're gonna get a big, huge spiritual push if there is any next life that Guruji knows. हमने तो उसके बारे में सोचना भी नहीं है, पर कहने का मतलब है जो होता है अच्छे के लिए होता है, जिस तरह से। पर यस, इस ह्यूमन लाइफ को खोना नहीं है, उसको स्लो पेस पे नहीं ले जाना है, फास्ट पेस पे। मेहर बाबा जी अपने गुरु की मेहर से, जैसे मेहर बाबा जी ने उनके ऊपर वर्क किया, तो वही हम गुरु जी से प्रार्थना करते हैं। समय हो गया है तो आज्ञा लेते हैं सबसे। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू मेहर बाबा जी, विद्या जी, एकता जी एंड शिल्पी जी, थैंक यू संगत जी।